Vice Chancellor Sri Rawatpara Sarkar University. Give a big hand to our chief guest today. And next, our special guest is Dr. Radheshyam Garg, ex-RPSC chairman and surgeon. So we give big hand to our special guest Dr. Radheshyam Garg sir. And again, our special guest today is Dr. Dheeraj Kant Sharma, professor in physics. And we have with us also our chairman sir, Dr. R.L. Sharma, coordinator, Dr. Yugal Parasarji, principal B.Ed College, and Dr. K.K. Upadhyay, secretary, and Dr. Lajpat Sharma sir. सम्मान किया जाएगा। उसमें मैं सर्वप्रथम हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर राजेश कुमार शर्मा जी, उपस्थित माननीय श्रीमान नीरज बाबू जी सिसोदिया साहब मंच पर आए हैं और माल्यार्पण के द्वारा हमारे मुख्य We had many eminent speakers from the various parts of the country. Next to be honored by the chair of honors and welcomes, so I request Dr. of Kamala Society, Dr. R.R.L. Sharma. Next, Dr. David. We have a very special guest among us, Professor P.K. Kulses, retired principal, honoring Professor P.K. Kulses, retired principal, Government Girls College, Thalpur. Thank you, sir. Thank you so much. Last but not least is Dr. Geetaram Tyagi. So please. It's Dr. Yugal Parasarji, who sponsored T-shirts for the persons who joined Yoga Accelerator today. So I request Dr. R.L. Sharma Sahab to honor him with a medal. Give a big hand, please. Please keep giving big hands. ताली बजाते हैं आप लोग। सर देने के लिए हमारे पास ये सम्मान, आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वॉलंटियर्स के लिए 60 टी-शर्ट्स अच्छी क्वालिटी की मतलब की डोनेटेड देम। प्लीज ऑनर हिम। नेक्स्ट इज अदम्य शर्मा, who sponsored kits. Adamya Sharma, is he here? I think he's not here. Adamya. Dr. Ausiti, ex-Vice Chancellor, Mrs. Sarjini,
डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, आरपीएससी चेयरमैन, पूर्व आरपीएससी चेयरमैन, डॉक्टर बीके कुलश्रेष्ठ, रिटायर्ड प्रोफेसर मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, धौलपुर, डॉक्टर एम.के. भारद्वाजी, प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज, मुरैना, डॉक्टर E.S. तिवारी जी, डॉक्टर अपने आनंद जी, डॉक्टर राजेश जी और डॉक्टर L.P. शर्मा साहब व सभी पधारे हुए हमारे अतिथिगण, छात्र छात्राएँ और जो आयोजक बड़े संगोष्ठी का जो विषय था आध्यात्मिक, योगा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का एक तरह से पुनर्जागरण और पर्यावरण चेतना, इस संगोष्ठी में इस विषयों पर काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। लोगों ने, व्यक्तियों ने, पधारे हुए व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं और अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। मैं समझता हूँ ये जो संगोष्ठी है एक तरह से काफ़ी सफल रही है और इसके मंथन से ऐसे परिणाम निकलेंगे जो कि मानव के लिए और सबके लिए एक तरह से ये बहुत ही फायदेमंद और अच्छे रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत। And it affects the environment and people's. Environmental pollution refers to the introduction of harmful pollutant into environment and that affect our health. And yoga that can control all the disease, and so far the spiritualism is related. It is also related to soul and God and also our well-being. So I would like to invite our director, honorable director sir, Dr. Rajesh Sharma sir, please present a report on the appropriate. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जी.टी. कौशिक साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, एक्स डायरेक्टर भोज यूनिवर्सिटी भोपाल, एक्स वाइस चांसलर रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी रायपुर, स्पेशल गेस्ट डॉक्टर आर.एस. गर्ग साहब, एक्स आरपीसी चेयरमैन, a very popular surgeon of the city, not only the city but he is the most popular surgeon in the whole district. But now this name is not confined only to the district. Being the chairman of RPSC, his name is known to all the people who belong to Rajasthan and particularly to all those who are associated with Rajasthan Public Service Commission. Our next special guest is Professor B.K. Kulshrestha, retired Government Girls College, Dhaulpur, and a very popular mathematician, very popular among the students. अध्यक्ष डॉक्टर आर.एल. शर्मा साहब, कार्यक्रम के कन्वीनर डॉक्टर बी.एस. तिवारी, को कन्वीनर डॉक्टर वाई.बी. पाराशर साहब, देन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर के.के. उपाध्याय, को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर एल.पी. शर्मा साहब, dear students, academicians, scholars, and all the persons who are directly or indirectly associated with this conference. इससे पहले हमने इस कॉलेज में
11 और 12 फरवरी को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। वो आयोजन इस कॉलेज में पहला आयोजन था, बहुत जल्दबाजी में किया था और आदरणीय दर्शक हमारे पीछे बैठे हुए हैं कि उन्होंने हमारे इसमें इतना सहयोग किया कि हम मतलब बूस्टअप हुए, हमने फील किया कि हम मतलब आगे बढ़ सकते हैं। उनके सहयोग से हमने उस संगोष्ठी को बहुत अच्छे से आयोजित किया, सफल संगोष्ठी देखिए। उसी के साथ दिमाग में विचार आया कि क्यों ना एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यहाँ पर की जाए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नहीं हुई थी। नया प्रयास था ये हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी where there is a will, there is a way, जहाँ चाहा वहाँ रहा। जब मन में ठान लेते हैं तो कोई रुकावट बाधा नहीं बनती हमारे लिए, और ऐसा ही हुआ। ये संगोष्ठी हमने एक बहुत सीमित संसाधनों के होने के बावजूद भी हमने शुरू की। हमारे पास स्टाफ की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, लेकिन हमारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। चेयरमैन साहब जो आपके सामने आप देख रहे हैं, मैं कहूँगा वो रोल मॉडल होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए। मतलब इस एज में भी वो सबके लिए काफी इंस्पायरिंग फिगर हैं, खुद काम करते हैं और ये चाहते हैं कि सब लोग काम करें। तो उनके प्रयासों से आज हम इस पैदल तक पहुंच चुके हैं कि ये संगोष्ठी एक धौलपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे भरतपुर संभाग में, जैसा मुकेश जी मुझे बता रहे थे कि भरतपुर में कोई भी संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय नहीं हुई अभी तक, तो उस लिहाज से न केवल प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये एक हिस्टोरिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। हो चुकी मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम पूर्णता की ओर हैं। हिस्टोरिक इसलिए कहा कि अभी तक 400 से अधिक रजिस्ट्रेशंस हमारे यहाँ हो चुके हैं। 400 रजिस्ट्रेशन मेरी पूरी जिंदगी कॉन्फ्रेंस में निकली। मुझे पता है 400 रजिस्ट्रेशन इतने आसानी से नहीं होते, और वो भी तब जब गर्मी का समय है, मई का महीना है, और ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत दूर दूर से हमारी टीम में आए थे। जब हमने शुरुआत की थी हम ये सोच के चले थे कि शायद 10-5 लोग केवल बाहर से जुड़ पाएंगे, अन्यथा हम लोगों को बस एक नामात्र की ये संगोष्ठी करनी पड़ेगी। सर मेरे सामने बैठे हुए, मैंने ये कहा था सर ये केवल एक गिनती की संगोष्ठी होगी हमारे लिए कि हमने एक संगोष्ठी की। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होंगे। सो द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कॉन्फ्रेंस इज मोर देन 400 बाय नाउ। तो ये एक अपने आप में इट्स अ हिस्टोरिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉट ओनली इन कमला पीजी कॉलेज धौलपुर, नॉट ओनली इन धौलपुर डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो इन भरतपुर रीजन, इंटायर भरतपुर रीजन। वो भी तब जबकि हमारा कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, संसाधन सीमित हैं। हो सकता है उतनी अच्छी व्यवस्था ना दे पाए हों जो हम, अगर हमारे पास संसाधन होते तो बहुत अच्छी व्यवस्था दे सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। ये केवल आपकी वजह से संभव हो पाया। अगर जितने भी अकेडमिशियंस हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं होते, अगर वो साथ नहीं देते और अगर वो यहाँ नहीं पधारते या अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो शायद we would never have conducted, we would never have organized such a great and grand international conference in this college of a small town, Dholpur. So first of all, I congratulate you all for making this conference a grand success. मैं सभी का बहुत आभारी हूँ अपने भागीदारी की। खास बात इसमें ये रही कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का, वो केवल वर्चुअल मोड पर चल रहा है, और हम लोग फॉरेनर्स को जो ओवरसीज के हमारे स्पीकर्स हैं, हम केवल उनको ऑनलाइन मोड पर जोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ करीब more than 25 foreigners were here. They were yesterday, they were today in the morning, they participated in the cultural activities, they made chanting here, so and they were from various countries of the world. Colombia, Russia, Germany. So from many countries they came here and they stayed here. So it's really a great pleasure for us to have such speakers. ऐसा नहीं है कि हमारे देश के स्पीकर्स अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, आप सभी बहुत अच्छे निकले। लेकिन खास बात ये रही कि वो भी यहाँ पर आ गए, तो एक उससे हमारी संगोष्ठी में 4 चांद लग गए, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि वो लोग इतनी दूर से हमें मिल पाएंगे या उनसे हमारा कांटेक्ट हो पाएगा। तो वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू ऑल, आई थैंक यू ऑल फॉर giving such a great support to this institution
for the organization such a great conference. Thank you so much. In a small district, Dholpur, we are having such an international conference today, and we have had so many intellectual academicians here from foreign. Hello. Sorry for forgetting one need for over 1 month. I would never have been successful in organizing this conference, and he, my friend, he had been my friend. He is and he will always be one and only Dr. Mukesh Kumar, Department Zoology from MSD Government PG College. मेरे एक आग्रह को स्वीकार किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार अपनी गाड़ी से अपनी जॉब को छोड़ करके छुट्टी लेकर के वो हमारे साथ में यहाँ पर रहे और ऑनलाइन मोड पर या कह लीजिए हाइब्रिड मोड पर इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया। मैं पूरे स्टाफ की तरफ से बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर, डिस्कशन हुए और डेफिनेटली कुछ समाधान की ओर भी our special guest, Professor Dr. R.S. Dr. N.K. Bharadwaj ji, Dr. B.K. Gulsher sir, patron of this international conference and chairman of the Kamla Group of Colleges, Dr. R.R.L. Sharma ji, co-patron of the international conference and director of the Kamla PG College, Dholpur, Dr. Rajesh Kumar Sharma ji, co-patron of the international conference and director of the Kamla TD College, Dholpur, Mr. Mandeep Sharma ji, co-patron of the international conference and Professor N.K. Dubey, International Forum for Botanists, Varanasi, convener of the ongoing international conference and the principal of the Kamla PG College, Dholpur, Dr. P.S. Tiwari ji, co-convener of and principal of the Kamla TD College, Dholpur, Dr. Y.P. Parasar ji, co-organizing secretary, Dr. L.P. Sharma ji, account and finance manager, Neeraj Babu Sisodia ji, indirectly or directly associated with us, Dr. Mukesh Kumar ji. As this conference is related to spiritualism, yoga, herbal and medicine, as well as the environmental consciousness, in these 2 days, 14th and 15th May, from all over India and abroad, so many researchers, delegates, students, and the related to the religious spiritual personalities join us, and they have contributed a lot in these 2 days. We have different sessions conducted according to our technical plan. From registration start 14th May 2023 at morning 8 a.m. and then start the technical session at 9 a.m. early morning. The conference starts with the breakfast and the different technical sessions conducted by the different personalities, or you can say the renowned personalities of the India and the abroad. We have a long list about the speakers, chief guests, and all these personalities. The chief guest of the 14th May inaugural session was the Shobharani Kushbaji, MLA Dholpur. The another special guest is MS Minaji, Manoj Kumar Pandit ji, and so many others. After that, the technical session starts. There is a Dr. Mukesh Kumar and Sudhanshu ji was the first personalities who have joined as a chairperson and reporter in the session.
and after that the another session conducted by the another speakers. The long list of the speakers is with us: Dr. Smriti Dwivedi, Dr. Arun Arya from Vadodara, R.K. Sharma ji, Prabha Dikshit ji, Dr. Rupali Rastogi, Dr. Anish Chandra Pandey, Dr. Naveen Singh Chauhan, Ashish Kumar Sharma, Sasi Singh, Dhananjay Dwivedi ji, R.N. Sharma ji, David Mashi ji, Mahima Habil Mashi ji, Shilpi Lavania ji, Jay Prakash ji, Dr. Swapnil Rai ji, Dr. Shivam Singh ji, Professor J.L. Bhatt ji, Professor Naveen Singh Chauhan, and another in this session is Manish Kumar, who have joined us. Garima Sharma is a certified yoga instructor from USA. In the 14th May evening, we have a cultural event or cultural evening. The spirituality personalities of the Vrindavan have joined us in this session, and 15th May from the beginning with breakfast, and after that at 9 a.m. we have sharply started our program, and the spiritual personalities from the different countries from Ukraine, Russia, Germany and other have joined us in this special session which is devoted to the spiritual. Before this, we have another technical session at early morning at 5 a.m. that is related to the yoga practices, and in these practices Dr. L.P. Sharma ji, Dr. Dinesh Dikshit ji and Amita Tripathi ji is from Gwalior, who have trained and who have given the yoga practices to our different participant delegates who have joined us in this session in the early morning at 5 a.m. After that, the technical session begins with the 10 a.m. Mukesh Kumar Sharma ji and Mukesh Kumar Yadav sir and Sudhanshu ji, again the chairperson of this session. Different speakers from a different part of the India have participated. Lot many online as well as the offline speakers have joined us in this session. Now, after lunch, we are in the valedictory session. Personally, I would like to thank our chairman sir, Professor R.R.L. Sharma ji, all the personalities standing over here, wonderful job, all have cooperated us in this session. And finally, I would like to thank all the students, participants, delegates and all the in-house and out-house members of the conference. We have a great achievement in this international conference, as Dr. Rajesh Sharma sir told in front of you, that it is really a wonderful event organized by this Kamla group of colleges. It makes a history in the Dholpur city, which is really known as a Machkund. And in this international conference, personally, रही है वो सभी ये बता सकते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये डेफिनेटली सक्सेसफुल रही है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल कितने टॉपिक्स थे यहाँ पर जो डिस्कस किए गए थे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे को-कन्वीनर of the conference and principal of Kamla TD College, Dholpur, for presenting a commenting note. वसुदेव सुतं देवं कंसचारुं वर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बड़े हर्ष का विषय है आज इस समापन समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगणों का, पूर्व वाइस चांसलर साहब कौशिक जी सरकार और बिल्कुल कोमल हृदय पूर्व RPSC साहब राधेश्याम गर्ग साहब, जो थोड़े से अनुनय से और हमारे को किसी भी
काम की जरूरत हो 24 आवर्स हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। आज से 2 महीने पहले भी एक सेमिनार हुई थी, गर्ग साहब ने आशीर्वाद दिया, वो और आज गर्ग साहब स्वयं भी देख रहे हैं उसमें और इसमें इतना अंतर रहा कि आज हम इसको बेहतर, पहले से बहुत बेहतर करवा चुके हैं। मतलब विश्वास नहीं होता कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कमला महाविद्यालय इस प्रकार की सेमिनार करवा भी सकता है, सोच भी नहीं सकते। मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी 6 साल तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा। वहाँ लोग आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, भोजन पानी लिया और चले गए। यहाँ मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि इतने लोगों का, आप लोग इतने विद्वान लोग आए। हम गवर्नमेंट जॉब में वहाँ रहते हुए, यूनिवर्सिटी में इतना रहते हुए वहाँ इतने लोगों को नहीं बुला पाते हैं, और आप लोग थोड़े से निमंत्रण मात्र से अपने अच्छे अच्छे इतने विचारों को पेश करने के लिए योग के ऊपर, आपके आध्यात्मिकता के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, शिल्पी लवानिया मैडम जी है, पिछली बार भी आई थी और अभी धैर्य के साथ पूरा देख रहे हैं, और मनोज सर जो कि पूरा ऐसे बच्चे की तरह बिल्कुल उसमें तल्लीन होकर के लगे हैं। 2 दिन से देख रहा हूँ इनकी, हम लोग तो हैं, हम लोग तो महीने भर से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन इतना अच्छा अचीवमेंट मैंने आप लोगों का यहाँ देखा, इतना अच्छा आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सभी लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुओं के भी गुरु, इस संस्था के अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कभी भी कोई काम, बस आप लोग तो शिक्षा से संबंधित कोई काम करें उसके लिए 24 आवर्स, ना धन की कमी, ना कभी भी खुद लगे रहते हैं। अगर किसी को अपन ने कह दिया नहीं गुरुजी आप आके बैठे यहाँ, तो नहीं आप बैठो, मैं दूसरी जगह बैठता हूँ या अपना काम करूँ। इतना तत्पर रहते हैं, हम लोगों को इतना मोटिवेशन उनसे मिलता है कि कुछ न कुछ हम लोग उनसे सीखते रहते हैं। उनके लिए इतना अच्छा प्रोग्राम कराने के लिए हम लोग भी, पूरी टीम, हमारी जो टीम ने यहाँ पे काम किया, चाहे उसमें किसी भी तरह का, अभयवीर जी है हमारे, पहले थोड़ा सा झिझक रहे थे मैं कैसे मंच संचालन करूंगा, लेकिन कल मैंने देखा एमएलए साहब आए, शोभा रानी कुशवाहा जी है ना, इतने अच्छे से और उनको बोल रहे हैं शायरी, इतना अच्छा मंच संचालन किया, इतना बहुत अच्छा लगा। और जो नहीं चाहते हुए भी सब लोगों को ऐसे नहीं तो ऐसे तो करोगे। मैंने गुरुजी से पूछा, अपने लाजपत गुरुजी से पूछा, प्रोग्राम 5 बजे, आज अपन 10:30 बजे लेट हो रहे हैं, तो कि ऐसी कोई बात नहीं है, 5 बजे की कहेंगे जब लोग 6 बजे आएंगे। मैं यहाँ 5:20 का आया, जब तक तो आधा सजदा दिया था। मतलब इतना तत्पर काम के लिए, योगा के लिए, सब चीज के लिए, सबसे ज्यादा हमें इन लोगों से कुछ सीखने के लिए मिलता है। दूसरे हमारे नीरज जी सर, भरद्वाज जी सर, इनको तो खैर आना ही आना है, लेकिन हम लोगों पे आशीर्वाद हमेशा इनका बना रहता है। कभी भी इनको याद करें तो ये तुरंत आते हैं। और मेरे बड़े भाई टी.एस. तिवारी जी, वास्तव में आपकी जय हो। केवल 2-3 महीने में आपने इतना प्रोग्राम करा दिया, इतना अच्छा। कमला कॉलेज की कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि हम लोग इतना अच्छा कर सकते हैं। और इन सबके करता धरता अपने जो डायरेक्टर साहब, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा आदमी जब संस्था से जुड़ता है तो संस्था को कुछ न कुछ देकर के जाते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, उनका इतना कोई मेरे पे शब्द नहीं है, इतना अच्छा उनका प्रयास रहा, बहुत अच्छे। हम लोगों को सबको लेके साथ चलते हैं, कोई नाराज भी हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है तो उनको ये मतलब नहीं है कि ये नाराज हो रहा है, अगले सामने से जाकर के उससे बोलेंगे। मेरे जैसे को भी समेट लेते हैं, हालांकि मेरी कम लोग बागों से बनती है, लेकिन मेरे को भी, मैं अगर नहीं चाहूँ कि काम नहीं करना है तो भी वो करवाएंगे। तो इतना अच्छा वो सपोर्ट रहते हैं, उनका मैं बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत। और ये इतने दिनों में, जो 2 दिनों में मैंने देखा वास्तव में। और दूसरे मेरे नए अभी भाई लोगों ने मेरे नए साड़ू बना दिए हैं, के उपाध्याय जी, इन सबकी प्रेरणा से इन्होंने, और रोहिता जी की ये सारी देन है कि जो महर्षि पाराशर योग महाविद्यालय ने यहाँ कुछ कर पाए, रोहितास और के उपाध्याय जी। और एक मैंने देखा यहाँ नया, अभी 2 दिन में जो मैंने देखा उसका मैं अनुभव आप लोगों, एक बच्ची है अपनी उपाध्याय, वास्तव में हम लोग मतलब पिता लोग जितना काम नहीं कर सके, उससे आगे जाकर के वो बच्ची नाम करेगी। रोशन इतना अच्छा उसने कोई भी आइटम किया, कोई भी प्रस्तुति दी, बहुत गजब से। एक बार बेटी के लिए जोर से ताली बजाएं और बेटियां खड़ी होकर के एक बार सबका अभिवादन करें।
इतना अच्छा इसने प्रस्तुति दी, क्या राष्ट्रगान हो कोई सा भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आगे जाकर के आपको बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे निकलेगी। और जितना भी यहाँ के, जैसा मैं तो अपनी लाइफ में देखता आया हूँ, प्रेसिडेंट नाम ही अपने आप में एक उग्रवादी जैसा लगता है, लेकिन हमारे अजय सिकरवार जी बिल्कुल साफ, कोई भी काम है इधर से ये लाना है वो काम कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां मेरे प्रेसिडेंट जी के लिए, इस कमला महाविद्यालय में जिसके तत्वावधान में 2-2, 3-3 और एक पहली अंतरराष्ट्रीय सेमिनार हुआ। बहुत सारा मैंने देखा यहाँ पर आकर के, और आप मेरे जितने भी साथी हैं, गजेंद्र गिरी साहब, पवन जी, अंशुल, अबरार जी, विष्णु साहब, जितने भी है कैमरामैन, जो भी अपनी देवियां बैठी हुई हैं, इन्होंने हालांकि मैंने पहले अपनी अपनी ड्रेस पसंद कर ली थी कि ये कोड हमारा रहेगा, हम लोगों को नहीं बताया, लेकिन ये बहुत अच्छा इनका प्रोग्राम रहा। और हमने इसमें योग के बारे में देखा, और 2 दिन में सिर्फ ये था कि अगर आपको सांसारिक भोग्य वस्तु आप लोगों को भोगनी है, आपको मीठा भी खाना है, आपको टहलना भी है, आपको घूमना है, तो केवल और केवल योग करें। क्यों है नहीं तन का भरोसा, किस घड़ी छूट जाएगा, एक दिन इस रूप का बाजार में लुट जाएगा। इंद्रियां होंगी शिथिल, सब भोग विष बन जाएंगे, मौत मांगेंगे न पावेंगे, बड़े पछताएंगे। और तब केवल हम लोगों का योग ही काम आएगा। केवल योग के अलावा हो सकता है हम लोगों के ये अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, इतनी बड़ी सेमिनार, और हम लोगों का पहले धौलपुर भरतपुर एरिया में थोड़ा नाम था, हालांकि गुरुजी के शिष्य तो विदेशों में भी रहते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल सेमिनार से जगह जगह से फोन आए, कमला कॉलेज, अच्छा कहाँ पर है ये, धौलपुर में इंटरनेशनल सेमिनार हो रही है। मतलब इतना अचंभा कर रहे कि प्राइवेट कॉलेज, हालांकि आप लोगों को जो नहीं है उनको बता दें, केवल भरतपुर संभाग की एकमात्र स्थायी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय कमला महाविद्यालय, जिसमें स्थायी मान्यता प्राप्त है, अन्यथा किसी को भी भरतपुर संभाग में नहीं है, भरतपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं। तो ये सब पॉसिबल कब हुआ, जब हमारे यहाँ राजेश सर जैसे, हमारे प्रिंसिपल बड़े भाई साहब जैसे, सब एकदम पूरी कमेटी, जब हम लोगों का एक काम नहीं कर सकता, और हो सकता है हम लोगों में कमी रही होगी। सूरवीर गिरते हैं मैदानी जंग में, वो कायर क्या करें जो घुटनों के बल चले। हो सकता है हम लोगों में कोई कमी रही होगी, लेकिन हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आगे पुनः आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, और हम इससे भी अच्छा एक टीम बना करके इससे भी अच्छा नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। To have views and blessings of our special guest, so I would like to request first of all our special guest, Honorable Dr. Neeraj Kant Sharma ji, please come on the stage and deliver. समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा साहब, आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कौशिक साहब, डॉक्टर तिलक साहब, आदरणीय तुलसी साहब, संस्था के प्राचार्य तिवारी जी, पाराशर जी एवं अन्य सभी डेलीगेट्स, बड़े भाई उपाध्याय जी, आप लोगों ने मुझे इस संस्था में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाकर ये जो सम्मान दिया है, उसके लिए आप सभी आभारी हैं। सेमिनार का जो विषय है बहुत ही विस्तृत था, वक्ताओं ने अपने अपने इतने उत्कृष्ट विचार जो प्रस्तुत किए थे। हालांकि मैं इस सेमिनार में अंतर उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन आज सुबह से जो मैं सुन रहा था उन सभी में लोगों ने योग पर बहुत ध्यान दिया है। और यदि हम योग को जीवन में उतार सकते हैं, बहुत अधिक समय न दे करके मात्र आधा घंटा ये समय सुबह दोपहर या शाम किसी भी समय यदि हम इसको दे सकते हैं तो हम निरोग जरूर रह सकते हैं। डॉक्टर से हमारी दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हम आए दिन डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। केवल आधा घंटे का समय है, इनकी विधियाँ विद्वानों ने जो है यहाँ समझाई हैं आपको, आप किसी भी विधि का अनुसरण करके और उसका लाभ ले सकते हैं।
क्योंकि मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है। सुबह के समय यदि आप इस योग क्रियाओं को जो है संपन्न करते हैं तो निश्चित ही शरीर में आपकी प्राणवायु एक नई ऊर्जा लेकर के साथ में आई। हालांकि मैं कल के विचारों को नहीं सुन सका था, फिर भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपके लिए प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद, आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। शर्मा जी बहुत प्यार से मुझे जो है सम्मान देते हैं। नीरज बाबू जी मेरे हम नाम के हैं, वो बहुत खुश होकर के मिलते हैं जब मैं यहाँ इस महाविद्यालय में आता हूँ। और मैं अपने सम्मान के लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ और शब्द नहीं है मेरे पास जहाँ मैं आप प्रोफेसर बीके कुलश्रेष्ठ सर को, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से, सर प्लीज आए। आज महाविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पधारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कौशिक साहब और मंच पर पधारे डॉक्टर राधेश्याम सर, मेरे गुरुजी डॉक्टर आर शर्मा साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर तिवारी जी, हमारे सभी के माननीय डॉक्टर नीरज जी एवं अन्य मंचासीन अतिथिगण और इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हुए सभी संवादी और पार्टिसिपेंट्स जो भी कमला कॉलेज के जिन्होंने इसका आयोजन किया है, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मुझे सर ने स्पेशल गेस्ट के लिए कहा तो मैंने उनसे मना किया था, घर में कोई गेस्ट नहीं होता है, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया और सम्मानित किया तो मैं उनका तहे दिल से सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि आज जो भी हम हैं उनकी प्रेरणा से ही हैं, अदरवाइज रोटी लगाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं था कुछ भी। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारे सेमिनार के बारे में पूरा डिटेल में बता चुके हैं और अब कार्यक्रम समापन की ओर है। बहुत ही सफल आयोजन रहा है। पिछले साल जो इसको स्थायी मान्यता मिली थी उसमें मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंबर भी था, तो बहुत ही हर्ष की बात है कि संभाग में केवल और केवल एक ही निजी संस्था है जो कि स्थायी मान्यता प्राप्त है विश्वविद्यालय का। और अब जो तैयारी चल रही है वो नेट के लिए निरीक्षण के लिए चल रही है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी के दिशा निर्देशन में, सर के दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इसकी जो दूसरी सीढ़ी है आज पूरी होने जा रही है, तो पहले नेशनल और अब इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित हो चुकी है, जस्ट कंप्लीशन पर है। चूँकि टॉपिक सारे अभी तक पूरे हो चुके हैं, मुझे सिर्फ यही कहना है कि योग, आध्यात्म और योग और पर्यावरण, तीन चीजें हैं। अगर केवल सुनने के लिए नहीं, उनको अगर आजमाया जाए, उनका अनुसरण किया जाए तो समाज ही नहीं, व्यक्ति नहीं, पूरा राष्ट्र सभी को उसका बेनिफिट मिलता है। और स्वस्थ रहने से तो बहुत सारे फायदे हैं। अगर मन और मस्तिष्क स्वस्थ होगा, विचार भी स्वस्थ होंगे, जिसकी परिणति आज ये है। तो मैं एक बार सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माँ सरस्वती को नमन करते हुए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के समापन में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को डॉक्टर कौशिक साहब, मेरे मित्र डॉक्टर बीके कुलश्रेष्ठ जी और इस आयोजन समिति के समस्त सदस्यगण, राजेश जी और इस सभा में सभी उपस्थित डेलीगेट्स, मुझे आज यहाँ आकर बड़ा सरप्राइज हो रहा है। मैं 2 महीने पहले आया था
और आज ये देख रहा हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल गई है। कितनी बड़ी बात है। मैं ये जो और इसका टॉपिक कितना सुंदर, योगा, पर्यावरण और आध्यात्म। मैं देख रहा हूँ बहुत देर से गुरु जी को, मेरे आनंद शर्मा साहब मेरे गुरु जी हैं, और मैं आज यहाँ जो पढ़ा हूँ केवल उन्हीं की देन है। मैंने फिजिक्स में जैसे मैथमेटिक्स में मार्क्स आते थे ना, ऐसे मार्क्स आए थे, और मैंने फर्स्ट ईयर में PMT टॉप किया था, पर PMT मेरिट में नाम था, टॉप नहीं किया था, मेरिट में नाम था। ये केवल उन्हीं की देन। मैं आज तक उनको कभी नहीं भूला, और मैं सोचता हूँ कि आए दिन मैं उनको अपने मन में याद करता हूँ, ऐसी उनकी देन मुझे मिली। इसका कारण मैं देख रहा हूँ अपने गुरु जी को। मैं देख रहा हूँ कि मैं भी जो भी काम करता हूँ तो मैं बड़ा थक जाता हूँ, बड़ा परेशान सा हो जाता हूँ, क्या करें क्या नहीं करें। और मैं इनका स्टूडेंट था, और आज इस एज में पहुँचे, इसका कारण यही मैं समझता हूँ कि इनका योगा, अध्यात्म और पर्यावरण में जो लगाव है, और इसलिए उन्होंने ऐसा टॉपिक चुना कि मैं इस पर्यावरण को, योगा को और इस वातावरण को शुद्धिकरण के लिए धौलपुर में लाऊं, और धौलपुर के लोग सीखें, और इस धौलपुर का नाम नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक जाना जाए। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा कारण महसूस हो रहा है कि धौलपुर का नाम नेशनल नहीं, इंटरनेशनल पर जाना जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसको मैं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं सर का और पूरी टीम का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इस आयोजन को किया, और इतनी जल्दी किया कि नेशनल लेवल से, और ये कार्यक्रम कराया। ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा एक मित्र है, मैं जब अपने काम करता था, जो भी अपना मेडिकल के अलावा, जैसे मैंने विकलांग शिविर लगाए, नेत्र शिविर लगाए, चिकित्सा शिविर लगाए, ऑपरेशन शिविर लगाए, ऐसे शिविर लगते थे, तो वो मेरे से चिढ़ता था। वो कहता था कि यार तू इतना करता रहता है, मैं कुछ नहीं करता। आज वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, और वो आज नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में अपने पेपर पब्लिश करता है, और अभी सारी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करता है। मैं कहता हूँ कि अब तू कितना अच्छा काम कर रहा है, मैंने कितना अच्छा काम कर रहा है। तू अपना जो नॉलेज है, तेरा जो क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, तेरे क्या क्या तूने सीखा है, वो बातें अपने दूसरे लोगों को बता रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। इससे तूने मेरे से बहुत अच्छा करा। कैसे कर रहा है कि तू अपना जो भी देगा, अपना जो पेपर पब्लिश करेगा, जो भी बताएगा, वो पेपर तेरे लिए, तेरे उनके परिवार के लिए और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कितना लाभदायी होगा, वो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने उसको बताया, आप उनमें से भी हैं, उसमें से ही आप सभी हैं। तो आपने जो ये टॉपिक्स सुने और ये काम, इस जो एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा, जो आपने संदेश जो दिया, इससे समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, और यहाँ तक अपना इंटरनेशनल बात जाएगी, सब सुधरेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ग्रुप में है और बहुत बड़ी समाज सेवी हैं। आप जान ही रहे होंगे कि पिछले नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया था, जिसके कारण आप इसको सक्सेसफुल करा पाए थे। उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। इससे पहले कि हमारी मुख्य अतिथि
Renaissance of Environmental Consciousness इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसको इस सीजन में बोलने का मौका दिए। स्पेशली हम डॉक्टर मुकेश कुमार को थैंकफुल है, उन्होंने इसको कॉन्टेक्ट किया था। इस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है स्पिरिचुअलिज्म और इट इज कनेक्टेड विद एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, योगा और इट इज कनेक्टेड विद एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड अर्बन रेनेसेंस। वास्तव में ये तीनों है कनेक्टेड विद एनवायरमेंट के। पहले हम स्पिरिचुअलिज्म पर आएंगे कि स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है ईगो से मुक्ति पाना, ईर्ष्या से मुक्ति पाना, तनाव से मुक्ति पाना, निगेटिविटी से मुक्ति पाना। जैसे क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण इच्छा जब हमने आ जाती है, जब हम थोड़े से ध्यान नहीं रखते हैं, इच्छा पर ध्यान ज्यादा हो जाते हैं, तो ये साइंटिफिक प्रूफ है कि शरीर में फ्री रेडिकल जनरेशन होता है। और उस फ्री रेडिकल जनरेशन से क्या होता है कि आदमी जल्दी बुढ़ा दिखाई देने लगता है, हार्ट डिप्रेशन होता है, डायबिटीज की बीमारी होती है, पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, गैस की बीमारी होती है, प्रेशर की बीमारी होती है। ये हमारे शरीर पर असर करता है। जब हम अध्यात्म के तरफ जाते हैं तो हम ईगो से मुक्त हो जाते हैं। उसका क्या होता है कि हम इन बीमारियों से मुक्ति पा जाते हैं। इसके लिए जरूरत यह है कि हम प्रकृति से जुड़े। हमारे अंदर इन्वायरमेंटल की भावना है और दुखद यह है कि आज कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ इन्वायरमेंटल इथिक्स से जुड़े और सोशल टेस्ट क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ इन्वायरमेंटल इथिक्स के बारे में चलता है, ऑब्जेक्टिव है। हमारे कंट्री में इन्वायरमेंटल इथिक्स बहुत पहले से रहा है भारत पर, और हम लोग निर्जीव में देवता के दास के मानते चले आ रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि इन्वायरमेंटल इथिक्स के बारे हमने नदी का दूसरा नहीं करते, इसको हम लोग देवता मानते। जैसे कि बॉडी है, पैर से पहले मज्जन और प्राण हर नदियों में हम लोग देवता का वास मानते हैं। तो क्या हुआ, आज इन्वायरमेंटल इथिक्स खत्म हुआ, स्पिरिचुअलिज्म खत्म हुआ है, तो सोने के दिमाग साफ करने से देखिए बात आती है। दूसरी चीज कि हम देखिए सस्टेनेबिलिटी की जो बात है, हम बताते हैं कि सस्टेनेबिलिटी को रीस्टोर करने के लिए रायत का जन्म हुआ। हम ये रावण राज्य में क्या था कि रावण उसके कारण हवा चलता था, सारे भारत उसके अधीन हो गए। तो क्या हो गया था कि पृथ्वी जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी खत्म हो गई थी और पृथ्वी गाय के भेष में
जो जनता को जाकर वहीं पे से जब लड़ पाएगा तो मेरे रास्ते भारत है तो क्या था सुप्रीम जहाँ से उसके लिए भी कोई जाए तो हर पर जाएगा इसलिए हम हुए तो देखिए ये हर रेवोल्यूशन की जो बात है हमारे लिए बहुत जरूरी है सिमिलर सिमिलर इस तरह का प्रयोग हमारे भारत से मिलता जुलता है और इससे बीमारी को ठीक करता है और कोरोना में पता चल गया कि कितनी जरूर दूसरे हमारे लिए इसके लिए प्रभावी नहीं है ऐसे बोला उसको तो साइड इफेक्ट आपके लोग तो जो हाइपर एजुकेशन है फार्माकोलॉजी है या और भी चीजें हैं उससे निश्चित रूप से देखिए इस्लामिक का बहुत बड़ा योगदान है बहुत सी मतलब है जिनका प्रोफेसर दुबे और उनके पहलू करते हैं वो प्रोफेसर पढ़ाने के दुबे सर टेक होम मैसेज हमको दे दीजिए हमारे कहने का मतलब है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक चुना बहुत अच्छा थीम है कॉन्फ्रेंस का और तीनों का बहुत बड़ा योगदान इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस में है हम आप लोगों को बधाई देते हैं इस तरह के थीम सुनने के लिए और भरतपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक बार और हमारा लेक्चर दिए थे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में उसी के थ्रू आप लोग हमको जानते हैं हमको इन्वाइट किए थैंक यू टू एवरीवन मेंबर साहब आज राइटिंग कमेटी हमारे पास सभी थोड़ा कम था इसलिए हम कम समय में बोले आप लोगों की जब फिर कभी इच्छा होगी फिर कभी बोल देंगे थैंक यू वेरी मच बहुत समय से टाइम निकाला थैंक यू वेरी मच और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारा आपका
Rawatpura Sarkar, Shri Rawatpura Sarkar, Raipur. So after it, he is leading a very comfortable life, peaceful life. So he is not doing anything now. Thank you, sir. सभी को नमस्कार। सम आदरणीय और विद्वज्जन, आप 2 दिन से ज्ञान गंगा में आप स्नान कर रहे होंगे और प्रसन्न चित्त होंगे। और मैं ये जानता हूँ, ये जो समय है आपको मैं ज़्यादा बोझिल नहीं करूँगा, लेकिन मैं सामान्य रूप से जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस है उसके बारे में आपके दिमाग में खुजली जरूर पैदा करूँ। मैं अपनी बात कहने से पहले आयोजकों को विशेष तौर पर शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच अपनी बात कुछ कह सकूँ। इसके बाद मैं विषय पर आता हूँ। मैं ज़्यादा बोझिल नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ सोच रहा था इसी बीच में। मैं बात शुरू करता हूँ एनवायरमेंट से और मैनेजमेंट से। इन दोनों शब्दों में सबसे नोटोरियस शब्द है MAN, जिसमें हम हैं। और इसी मैन की वजह से ही पर्यावरण की गंगा विश्व स्तर पर गंदी हो चुकी है, जिसमें अब हम रहना नहीं चाहते या अलग अलग बहाने करते हैं।
इसी चीज को मैं बहुत साधारण भाषा में आप तक पहुंचाया था, जिसमें हम रहते हैं। दो टेक्निकल वर्ड है यहाँ पर। एक है इट इज होलोसिनोटिक एंड होम्योस्टैटिस। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं यहाँ पर शायद उसको जरूर समझते होंगे। होलोसिनोटिक कंसेप्ट का मतलब है जितने भी अवयव हैं वातावरण में, वो एक मकड़ी के जाले की तरह से आप उसमें जुड़े हुए हैं और वे संयुक्त रूप से काम करते हैं। हम एक धागे को अगर छेड़ते हैं तो पूरा मकड़ी का जो जाला है वो हिल जाता है। ये है होलोसिनेटिक कंसेप्ट। दूसरा है होमोसिनेटिक। इसका मतलब ये है कि अगर उसमें हम छेड़छाड़ करते हैं तो वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, उसका समन्वय और विश्लेषण, एनालिसिस, कंट्रोल वो खुद करता है और वो किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता है, किसी न किसी रूप में हमको दिखाई देता है। हम उसे समझें या न समझें, वो इंडिकेशन देता है। उसके मैं वो एक उदाहरण दूंगा और वो उदाहरण वो होंगे जिसे हम जीते हैं, देखा है, होगा। और ये ठीक उसी तरह से होगा विश्व स्तर पर। जैसे एक हांडी में एक चावल को देख करके हम पहचान लेते हैं कि हांडी खराब हो गई कि पक गई, ठीक उसी तरह का होगा। और मैंने ये कोशिश की है सोचते सोचते कि मैं अपने को एक दायरे में ही बांधे रखूं। एनवायरमेंट हम जानते हैं ये हमेशा से ऐसा नहीं हुआ था। ये ओरिजिन हुआ था, इवॉल्व हुआ था। इसकी बहुत सी थ्योरी है, उनमें मैं यहाँ नहीं जा रहा हूँ। और वो धीरे धीरे चेंज हुआ। अगर यहाँ पर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो या बॉटनी का, वो जानते होंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वो ये बताता है कि पहले विश्व में एक भूभाग था, कहीं कोई न अमेरिका था, न इंडिया था, न ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन भूगर्भीय कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई कि ये जो भूभाग पेंजिया था वो धीरे धीरे महाद्वीपों में टूट गया और धीरे धीरे अलग अलग बढ़ता चला। इसके सबूत, इसका जो है प्रूफ, वो ये है कि आप किसी भी एटलस या बाजार से 10 रुपए का वर्ल्ड मैप लाइए, उसको कॉन्टिनेंट्स को काटिए और वो आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे एक भूभाग है। उदाहरण के लिए हम वे ऑफ बंगाल को देखें और उसमें हम ऑस्ट्रेलिया फिक्स करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली उसमें आज फिक्स हो जाएगा कागज पर। और उसकी तत्वीय रचना भी, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, केमिकल एनालिसिस देखें, संथानपरता और ऑस्ट्रेलिया उनकी एक है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, केमिकल स्ट्रक्चर लाखों सालों के बाद में आज भी एक है। अगर हम अरेबियन सागर को देखें, कच्छ का इलाका, बॉम्बे का इलाका, अगर इसको अफ्रीका से मिला तो वहाँ पर एग्जैक्टली जो आप कटिंग करेंगे वो आपस में मिल जाएंगे। तो वो इस बात पे प्रूफ है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इसी जंगल में रहने वाला और हंटर, उसी समय
आविष्कार हुए जो आज तक अनबिके हुए, वो थी फायर और बीज। इन दो कारणों से उस आदि मानव को मोबिलिटी मिली और उसने नदियों के किनारे जहां उनको आर्थिक मिल सकता था, जीवन के लिए पानी मिल सकता था, इकट्ठा होना शुरू किया। हम दुनिया की कोई भी बड़ी सभ्यता ले लें, कोई भी बड़ा शहर ले लें, सब नदियों के किनारे। कोई ऐसा नहीं है, चाहे हम बनारस ले लें, चाहे और कोई, सब नदियों के किनारे हैं और वो मोबिलिटी के कारण। यहाँ पर जो शुरू का मानव था, उनकी जनसंख्या सीमित थी, क्योंकि जितना बर्थ रेट था उतनी मृत्यु दर और मनुष्य उस समय पर्यावरण का एक था, लेकिन मनुष्य में कुछ विशेषताएं हैं दिमागी, और उसमें दो हेरिडिटी कैरेक्टर्स चलते हैं, एक जेनेटिकल और एक सोशल, जो हमें परंपरागत मिले। उन्हीं के आधार पर मनुष्य का मस्तिष्क क्रिटिकल हुआ, वाइस हुआ, और उसने अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकृति से ऊंचा जानते हुए भी उसको काउंटर करने की कोशिश की। मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप वो सुबह से या 2 दिन से व्यस्त हैं, थकान है, लेकिन मैं शॉर्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा सजगता वातावरण हो, कैसा हमने इसको बिगाड़ दिया है और क्यों बिगाड़ दिया, ये बताने की भी कोशिश करता हूँ। और मैं उदाहरण वो दूंगा जहाँ हम जी रहे हैं, जहाँ पर मैंने शिवपुरी का इलाका 60 से खोजा है। मैंने वहाँ का हर गांव साइकिल से कवर किया, लगभग हर गांव। मैंने जब PhD का काम किया था, प्लान कलेक्शन किया था, उसकी वजह से जीवाजी यूनिवर्सिटी म्यूजिक हर्बेरियम का सेट वो बना और मैं उसका एक मेंबर तब से 50-60 से। तो उस समय के जो उदाहरण मैं आपको अब दूंगा कि कैसे किया हो। खैर, आदमी ने इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसकी वजह से 2 चीजें हुई, पॉल्यूशन और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो हम में से शायद अधिकांश को आश्चर्यजनक लगे, फिजिक्स वालों को नहीं। हमारे वातावरण एनर्जी है और एनर्जी हमारे पर्यावरण में 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, जो शाश्वत सत्य है। लेकिन उसमें और बायोलॉजिकल यूटिलाइजेशन थोड़ा सा एक ये है जो हमारे गीता में भी लिखा है, ये कहते हैं ऊर्जा न नष्ट हो सकती है न उत्पन्न हो सकती है, सिर्फ बदलती है। जैसे हमारे गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है, सिर्फ ये जो योग वाले हैं उसको प्राण बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। अब जो ऊर्जा है एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो 90% वेस्ट हो जाती है, नेक्स्ट लेवल पर केवल 10% यूटिलाइज। मैं इसको अपने जीवन से मैं करूं
सबका है। हम जो खाना खाते हैं वो ऊर्जा है, भूख कुछ भी हो सकता है उसका। जो हमने खाया है उसका 90% वेस्ट जाता है, मन में, चलने में, सोचने में, अन्य कार्य। केवल मैक्सिमम 10% हम यूटिलाइज करते हैं। अगर एक कल्पना कीजिए, अगर हम 10% से ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे होते तो हमारा शरीर क्या होता? शायद इन कमरों में से, इन दरवाजों से निकल नहीं सकता। सिर्फ रूप बदलता है। अगले लेवल पर जो शाकाहारी जो मांसाहारी जाते हैं 10% की, वो केवल अगले लेवल में 1% रह जाएगी, 9% जिससे कि खत्म नहीं होगी, रूप बदल देगी, डिसिपेट। और उससे अगर 0.1%, मतलब एनर्जी जो है केवल प्रकृति में 3 या 4 सब वेस्ट हो। अब वो वेस्ट होकर जाती कहाँ? कहीं तो जाएगी। वो क्रिएट करती है पॉल्यूशन, वो करती है पॉल्यूशन। अब ये बात बता दी पॉल्यूशन क्यों हुआ। दूसरा ये है जो भौतिक कारण है जिन्हें हम जानते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन, बर्निंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, कोल, वुड एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। ये एनवायरमेंटल हो सकता है, एग्रीकल्चर में केमिकल्स के कारण से होता है, सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, और हमारे शरीर के अंदर ऑब्नॉक्सियस गैसेस के इनहेलिंग से होता है। हमें जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनके कारण से हो सकता है। उसकी वजह से हमारे अंदर जेनेटिकल चेंजेस हो सकते हैं और वो चीजें उसके कारण से अनेक डिफॉर्मिटी। अब मैं तो नेक्स्ट बात पे आ रहा हूँ। इन सब का चीज जो हमने कहा बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है, तो मैं पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवपुरी एरिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने अपना जीवन का बहुत लंबा समय जिया है। वहाँ पर शायद आप जानते हो, नरवर के पास में मोहनी सागर डैम बना है, जहाँ से इरिगेशन भी है और सब कुछ है। उस एरिया में आप जानते होंगे एक तेजपुरा तालाब जो सामान्य रूप पर है वो होता है लाल से रंग, जिसे पहले होली में यूज किया जाता था। लेकिन उस एरिया में ये मेरा रिकॉर्ड है जो बॉटनिकल जर्नल्स में रिकॉर्डेड है, वो एक वैरायटी थी मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, वो कंप्लीटली वाइट वहाँ पे अब नहीं। दूसरा, उस एरिया में दो रूट पैरासाइट मिलते थे। एक था डेंड्रोथाई सल्केटा जो आम के पेड़ पर और महुए के पेड़ पर लगता था, आग नहीं। ऐसे एक और पैरासाइट विस्कम एल्बम, लोकल नेम नहीं जानता, वो भी आजकल नहीं। और तीसरा एग्जाम्पल जो मैं इसी एरिया का बताता हूँ वो ये है, जानते होंगे सब चिरौंजी। चिरौंजी शिवपुरी एरिया में बहुत मिलती थी। सड़क किनारे पर जो लोकल ज्वेलर से उसको इकट्ठा करके लोकल भाषा में उसको अचार बोलते हैं, सड़क के किनारे बेचने बैठ जाते थे। आज शायद ही आपको कोई पेड़ वहां दिखाई दे। अच्छा, चलो
ये तो एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल जूलॉजिकल में आपको लिखता हूँ, जो कम से कम जो सीनियर पर्सन है उन्होंने जरूर देखा होगा। एक कीड़ा हुआ करता था वालवेट रंग का, गुलाबी रंग का, जिसे बहुत मिलता था, बहुत सुंदर हुआ करता, मखमली जैसे फूल मखमल उसको। क्या आज यंगस्टर्स ने देखा है उसे? किसी ने देखा है यंगस्टर्स में? नहीं, जो पूरी तरह से खत्म। और उसका उपयोग होता था तेल बनाने, सब। दूसरा एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा, ग्लाइकोडिन बसाका एलेम्बिक की खांसी की दवा, वो बनती थी अडेट हुआ वैसे। शर्मा जी जानते होंगे, ग्वालियर के पास में बिलहुआ जगह है जहाँ पे पानी होते हैं, उससे लेकर के दतिया तक ये जो ये दवाई वाले लोग थे, उसका टन्स में उस अडेट हुआ बेटा वैसी का उपयोग करके ले जाते थे। आज अभी जाइए शायद है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन उस एरिया से ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण से खत्म हो चुका। क्यों? ये आदमी के कारण से। और आदमी की एक जो फितरत थी, जनसंख्या में बीमारियों को कंट्रोल किया, आबादी बढ़ी। उसके बाद तो मैं ये सब बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एक छोटे से स्तर पर पिछले 50 सालों में इतना डिग्रेडेशन हो गया है, तो हजारों सालों में विश्व स्तर पर मुझे आज्ञा हुई है कि मैं अपनी बात खत्म करूं। वो ये अब मैं जो कहना चाहता हूँ, इस विषम परिस्थिति को नेता नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं कर सकते, राजनेता बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अपने अपनी प्रायोरिटीज हैं। इसको दूर अगर कर सकते हैं, समाज के अंदर हम चेतना जागृत कर सकते हैं। केवल शिक्षक, साइकोलॉजिस्ट और तो बंधुए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज थिंक इट ओवर। थैंक यू। अभी एक बार जोरदार तालियां तनवीर के लिए। बीपी कौशिक साहब, एक्स प्रोफेसर डिपार्टमेंट बॉटनी जीवा यूनिवर्सिटी एंड एक्स प्रो वाइस चांसलर भोज यूनिवर्सिटी। स्पेशल गेस्ट आर.एस. गर्ग साहब, जाने माने सर्जन, एक्स आरपीएस चेयरमैन साहब। नेक्स्ट स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज शर्मा जी, गवर्नमेंट कॉलेज मोरेना। नेक्स्ट डॉक्टर विकी कुलस्ते साहब, प्राचार्य गर्ल्स कॉलेज धौलपुर। डॉक्टर एल.पी. शर्मा जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, निदेशक कमला महाविद्यालय। और हमारे सब पर आशीर्वाद बनाए हुए, हालांकि मुझे याद पहले करना चाहिए मगर आशीर्वाद उनका ले लेता हूँ, इस कमला ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर आर.एल. शर्मा साहब, इनके आशीर्वाद
इनकी मन की जिज्ञासा से ही ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में ऊर्जा आई है। डॉक्टर के उपाध्याय जी, प्रोफेसर एंड हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, कमला पीजी कॉलेज। इसके अतिरिक्त ये हमारे मंचासीन सदस्य थे, इनके आशीर्वाद स्वरूप ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो समापन समारोह संपन्न हुआ। इसके साथ इस संगोष्ठी को सफल बनाने के लिए देश विदेश से जितने भी विद्वान जन शोधार्थी आए, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत सम्मान करता हूं। इसके बाद हमारे जो कॉलेज के दोनों कॉलेजों के प्रोफेसर्स जिनके अथक प्रयासों से ये कॉन्फ्रेंस सफलता की ओर बढ़ गए, जिनमें मैं पुनः एक बार डॉक्टर राजेश शर्मा जी, निदेशक कमला पीजी कॉलेज, वास्तव में इनका मैं प्राचार्य की हैसियत से कमला कॉलेज के पूरे अपने स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के निर्देशन में ये संगोष्ठी सफल हो पाई। डॉक्टर शर्मा साहब से मैं एक बात मंच से अवश्य कहना चाहूंगा कि छोटे तो हमेशा गलती करते हैं और बड़े उनको डांटते हैं, मगर उन्हें क्षमा भी कर देते हैं। आप हमारे अग्रज हैं। अगर हमारे स्टाफ ने अगर मुझसे किसी से भी संगोष्ठी में थोड़ी बहुत आपके प्रति कोई नेगेटिव बनी है तो आप उसे क्षमा करें। और इस कॉलेज को आपने राजस्थान लेवल पर ले जाने का जो संकल्प लेकर इस महाविद्यालय को ज्वाइन किया था, उसको आप जरूर साकार करें। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं भी किसी भी रूप में, मगर हम पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि ये 2 संगोष्ठी हुई है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसका उद्देश्य आपने ही निश्चित किया था कि इस कॉलेज को मुझे नेक करवानी है। मैं प्राचार्य हूँ, आप मुझसे बड़े हैं और आप इतने बड़े हैं कि 10, 12, 15 साल का हमारे आपके बीच में डिफरेंस है। आपका आशीर्वाद होना चाहिए। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नीरू शर्मा जी, कृष्णानंद उपाध्याय, अर्चना शर्मा जी, ओपी उपाध्याय जी, अभयवीर जी, गौरी दीक्षित, प्रवताज जी, दिलीप जी, गौरव शर्मा जी, रामपाल गुर्जर जी, हमारी आरती, हमारी शिवानी गोयल जी, ऑफिस के अंशुल सोनी जी, संदीप सिकरवार जी, नीरज बाबू जो ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट हैं, हमारे कॉलेज की बैकबोन है। इनके ही हिसाब किताब से सब फाइनेंस डेवलप होता है। और मैं प्राचार्य के नाते अपने महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय जी के तरफ से आपको इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में आपका जो सहयोग रहा है, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बीएड कॉलेज के मेरे छोटे भाई प्राचार्य डॉक्टर युगल बिहारी पाराशर जी, इस कॉन्फ्रेंस में उनका भी सहयोग रहा है, बिल्कुल उपस्थित रहे। अक्सर उनका ये रहता है कि उनका बिजी शेड्यूल है तो वो बीच बीच में चले जाते हैं, मगर इस कॉन्फ्रेंस में वो कंटिन्यूटी बनाए रखी है, तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर एल.पी. शर्मा जी, अब इनके लिए भी जो शब्द कहे जाए कम है। माननीय चेयरमैन के बाद वो हमारे 2 नंबर के सबसे सम्मानीय सदस्य हैं। उनका आशीर्वाद तो हमेशा हम पर रहा है, मगर इस संगोष्ठी में उनका आशीर्वाद कुछ हमें ज़्यादा ही मिला। जैसे उन्होंने सुबह तो योग के कार्यक्रम में मैंने देखा कि मैंने सोचा मैं जल्दी पहुंचूंगा, मगर मैंने देखा वो सबसे पहले आके बैठ गए। ऐसे महान व्यक्ति का ऐसे, और सबसे बड़ी इनकी विशेषता क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो सभी पदों पर रहे, लेक्चरर रहे, प्रिंसिपल रहे, पीओ रहे, डीओ रहे, और आप डॉक्टरेट है, पतंजलि के सक्रिय कार्यकर्ता है राष्ट्रीय लेवल के, परंतु उनके अंदर लेस मात्र भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बड़ा चाहे किसी काम को दे दो, उनसे ये हमारी नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। कई बार हम अपनी कॉम्प्लेक्स बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे से जूनियर है, ये मेरे से सीनियर। अरे भैया काम करना है, हमें तो जूनियर सीनियर थोड़ी देखना है।
जो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि काम का से ही नाम होता है और नाम से ही नाम आता है। तो इसके बाद डॉक्टर नीतू तिवारी जी, डॉक्टर मनु तिवारी जी, गजेंद्र गिरी जी, पवन त्यागी जी, विष्णु सुबोधी जी, नसीम जी। अब जो सबकी जो सेवा की है चतुर्थ श्रेणी के, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अशोक कुमार शर्मा जी, श्रीमती सलमा, श्रीमती सायरा, श्री रज्जो खान जी, रामवीर जी, पंकज जी, और मैं सबसे ज्यादा जूलॉजी के नाते मेरे सीनियर, मैं हालांकि उनके साथ नहीं रहा, मगर 2003 में जब मैं धौलपुर में सेटल हुआ तो डॉक्टर यादव साहब, मुकेश यादव जी सर के संपर्क में थे, तो मैं भी सर के संपर्क में आया। आप जूलॉजी के बहुत जो जाने माने विद्वान हैं, इनका भी इस संगोष्ठी में मुझे कई बार मैं सोचता था कि इतना बड़ा आदमी एमएससी कॉलेज में एक रिसर्च के मामले में पूरे भरतपुर संवाद में फेमस पर्सनैलिटी है, वो व्यक्ति हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो मेरा कॉलेज, महाविद्यालय, दोनों कॉलेज तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से सही जैसे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब छात्र संघ ने इस बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें कॉलेज का छात्रों का प्रेसिडेंट ठाकुर अजय सिंह सिकरवार, जो मेरा छात्र भी रहा है, बड़ा नटखट है मगर बड़ा अच्छा बच्चा है। जब इसे किसी कार्य की कही तो ये बिल्कुल इसने कहा, इवन देन इसने 24 घंटे सेवा नहीं, रात में कोई काम नहीं लग रहा तो मेरे घर पे ही सर बोले मैं तो अपने गुरुजी घर पर रुकूंगा, पता नहीं कब काम पड़ जाए गाड़ी का, किसी चीज का कॉन्फ्रेंस के, तो मेरे यहाँ रुका। तो मैं पूरे छात्र यूनियन को भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब अंत में मैं 1 मिनट थोड़ा सा लूंगा, मुझे चूंकि मैं जूलॉजी का छात्र हूँ, ये बस 1 मिनट लूंगा। जो थीम है आध्यात्मिकता, योग, पर्यावरण, वास्तव में ये हमारी थीम है, इसको बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो 2 दिन से देश विदेश के बहुत लोगों ने बोला, मगर इसकी सिग्निफिकेंस बाइंडिंग को देखा जाए तो बहुत कम लोगों ने कहा। मानव जीवन पर इसका क्या नेगेटिव प्रभाव है और मानव जीवन पर इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव है। मैं चूंकि जंतु विज्ञान का एक छात्र हूँ, इसलिए जंतु विज्ञान की जितनी भी लॉजी उनका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमने अध्ययन किया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैंने भी इस पर अध्ययन किया कि इसमें जैसे आध्यात्मिकता क्या है, इसको मैं प्लीज मैडम अर्चना मैडम जी प्लीज कहते साहब, जैसे आध्यात्मिकता का मतलब एक विश्वास, घर में जैसे पिता होता है तो बच्चे निडर होकर के काम करते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती पिताजी हैं, और जब हम पिता के स्थान पर परम पिता पर विश्वास कर लें, यही आध्यात्मिकता है, हमें चैन की नींद आएगी। योग क्या है? हमारे शरीर की जितनी भी उपापचय क्रिया हैं उनका संतुलित, चाहे वो एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म, प्लस माइनस बिल्कुल बराबर है, टोटल उसका बिल्कुल सही है, तो वो योग है। और ये योग कुल मिलाकर के हमें अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए, जिससे हमारी उपापचय क्रियाएं बिल्कुल बैलेंस में चलें। इसके बाद पर्यावरण की बात है। पर्यावरण की बात हम जानते हैं कि पर्यावरण के घटक है, पर्यावरण का जो असंतुलित होना वास्तव में एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है। अगर ये आध्यात्मिकता हम अपने जीवन में ले आए, काम करने के बाद परमपिता परमात्मा विश्वास कर लें तो हमने तो काम किया, जो फल मिला है उसमें संतोष करें प्रतिदिन अपने शरीर को, क्योंकि हमारे माननीय चेतन साहब कहते हैं, क्या बात है गुलाम किया, चेतन साहब कहते हैं कि जो वस्तु वर्तमान होती है अपनी जीत अपनी तक चलती है। योग से हम शरीर की जितनी वाइटल एक्टिविटीज है, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको मोबिलिटी मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिलते हैं। और एक प्रयोग करके देखिए कि हम सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अगर जो मेरे साथी हैं काम से रिलेटेड, तो काम जाकर के जब हरी फसल हो, आप मोबाइल पर घर पर छोड़िए, खेतों में घूमने चले जाइए, तो आपकी जितनी बीमारियां हैं खत्म हो जाएंगी, बढ़िया नींद आएगी, तनाव होगा। तो अंततः बात यह है कि शरीर में तीनों का प्रभाव होता है। रिसर्च जो आधुनिक रिसर्च द्वारा भी स्थापित हो गया है, तो डोपामाइन और सीरोटोनिन ये 2 रसायन हैं। अगर ये दोनों रसायन आध्यात्मिकता, योग और एक प्राकृतिक वातावरण के द्वारा शरीर में इनकी मात्रा बढ़ जाती है,
और इनसे हमें नींद अच्छी आती है, तंत्र अच्छा होता है और उपापचय क्रियाएं हमारी ठीक से चलती हैं और हमें उपापचय रोग नहीं होते। वास्तव में इस कॉन्फ्रेंस का अंतिम कंक्लूजन यही है और मैं इस कॉन्फ्रेंस में जितने लोगों ने भाग लिया है उनको मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से छात्र डॉक्टर डी.एस. तिवारी सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त होने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक बार सर थोड़ा स्टेज पर रहिए। मैं अब छात्र संघ के अध्यक्ष लोकप्रिय अजय सिंह सरकार जी को निवेदन करूंगा कि प्राचार्य महोदय छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया, मेहनत की। वो छात्राएं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में बहुत मेहनत की है। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए प्रभु जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।